हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक इन फिजिक्स एंड इट इज वेक्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर quantities and their application. So वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर और द व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज. तो बेसिकली द फिजिकल क्वांटिटीज which we have measured are scalars and vector. So there are two kind of physical quantity. First is scalar and the second one is vector. Now what is scalar? The quantity which have only magnitude such a quantity which have only magnitude are called scalars or scalar quantities. For example, distance, speed, mass, etc. So these are the quantity which are only can be represented by the magnitude. There is no necessarily use of direction. Now what is vector? The quantities which have magnitude as well as direction are called vector. Vectors or vector quantities. The examples of vector quantities are displacement, velocity, force, momentum, and so on. Number of the vector quantities are still known. So here are the two quantities that can be measured in physics are scalar quantity and vector quantity, or the scalars or vectors. Now we have to discuss here the vector quantity. Why? Because the different of algebraic operation of scalar quantity may taken out or carried out by simple algebra. But the difference of the vector quantity is entirely different with the scalar quantity. What we cannot apply the common algebra rule for any kind of operation with the two physical quantities that are vector. So we have to use the vector quantities, and we have to operate in terms of vector addition, vector multiplication, and other analytical method which will be solved by using the vector concept. So here we are going to start vectors. तो वेक्टर हमने बताया the vector quantity which have magnitude as well as direction, those are called vector quantities. Now we have to specify some different types of characteristic with the scalar and vector. So here the another topic, representation of vector. Now how vectors are represented? Suppose that two quantities are given and we have to identify scalar and vector. So the simple way to identify the vector, just we have to use the vector notation, and the vector notation is the arrow. Suppose that we have mass and velocity. Now two different quantities are given in which we have to identify the vector. So without any sign we cannot identify whether it is given vector or not. So for special identification of the vector we use a kind of notation over the physical quantity symbol, and that will become this one. अभी यहाँ पे एरो लगा है, तो that will signify the quantity that it is vector
And after knowing the reality about the vector, we have to use the we have to use the vector calculus or the vector algebra for solving different kinds of behavior in the nature of the vector. तो किसी भी वेक्टर को हम क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, where the tip of the arrow represent the direction and the length of the arrow is represent magnitude. So this is the representation of a vector quantity. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. Now in next we are going to discuss types of vector, or suppose before going to types of vector, let us understood very clearly the concept of position vector and displacement vector. So first of all we are going to discuss position vector. अभी जैसे इसका नाम है, the vector which is used for finding out the position of the object in the space. So basically vector will be used in plane that is object is moving in 2 dimension or 3 dimension. So if we wish to find out the position of the object in the straight line, it will be simply we have to draw the displacement. Suppose that any object is started from point O and it reaches up to point P, and we have to find out whatever distance is traveled by the object. Just we have to meet the common point to each other. We will get the distance in a given direction. That will be the displacement. But now suppose that object is moving in 2-dimensional space, that is xy plane, and we have to identify or we have to locate the position of the object. So for this we use a kind of frame of coordinate that is called reference frame. So यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि in the case when the object is moving in 2 dimension or 3 dimension, so in such a case we have to use a special kind of notation in coordinate geometry that is called what? Frame of reference. Now this method is very important just because to know what is the actual behavior shown by the particle in the 3-dimensional space. So suppose that we wish to find out the position of the particle. So if we talk about the gaseous particle, so it is well known fact that the gas particle always move to and fro and in the random motion, and the space occupied the gas particle or the moving nature in the space is given in 3 dimension. So here we can choose a special kind of notation. तो पहले पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं. Now let us suppose x and y plane है and any object is at position P. So position P पे क्या है? The particle is at position P. It is at rest. That means it is at stationary condition, but the condition is that the particle is moving in 2-dimensional space. Now we have to locate what is the position of the object. So for finding out the position of the object from the point of intersection of two mutually intersecting line, that is point O, we will meet this line, that is OP. Now OP, this is the particle, OP will called position vector. So OP क्या हो गया? OP is the position vector and the coordinate of P in the case of xy plane will be given as px. So here we can find out the position of the particle and this OP is our position vector. इसको हम r से भी कह सकते हैं. तो r is equal to OP. So what is the position vector? A vector drawn to just identify the position of the object is called position vector. इसी को क्या बोलते हैं? Position vector कहते हैं. This is the case simply when in 2-dimensional motion or the 2-dimensional space the particle is in stationary condition. Now suppose that particle is moving. Now suppose that particle is moving, then we have to use another kind of vector and that will call displacement vector. Now
In earlier chapter we have already read about it. The displacement is also called a vector quantity. उसमें भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस गिवन इन अ डायरेक्शन. Now suppose that this particle move from position P to Q. अभी ये पार्टिकल क्या कर रहा है, P से Q पे मूव कर रहा है. Again to locate the position of the particle from the reference frame, that is from the origin, we draw the line x and y, and we wish to locate the two different position of the particle from origin. तो origin से क्या हो गया, the position vector for the particle is, this is say r1, and the position vector for the particle p2 is say r. Now these are the two position vector for the two different position of the same particle p1 and p2. So r1 and r2 are the just simply the position vector. But how much distance shift by the particle from moving p1 to p2 will be given by another kind of vector, और ये हम क्या कर सकते हैं, tail of the vector represented as this one at point p1 and head of the vector represented by over the p2. So this line, that is p1 to p2, will be called displacement vector. Why we have seen the displacement? Because at the common point we are just finding out the how much particle displaces from one position to another position. So this is what the displacement vector delta r, that must be given as the difference of position vector r2 minus r1. तो इस तरह से हम जानते हैं कि what is the position vector and what is the displacement vector. पोजिशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर. बच्चों, द मॉर्निंग टाइम इज वेरी गुड फॉर स्टडी. our parent always says to us that wake up early in the morning. 4 बजे सुबह सुबह उठिए और पढ़िए. मैं भी ज़्यादातर जो लेक्चर सुबह देना पसंद करता हूँ. शांति रहती है, अच्छा माहौल रहता है पढ़ाने के लिए. एंड आपको भी सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए. 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, सुबह उठ के कम से कम 1-2 घंटे पढ़िए. काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में. अभी कोशिश है पढ़ाने की, थोड़ा सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ जाए तो हम लोग सुबह इसी को क्या करेंगे, रेगुलर वे में करेंगे. एंड वी विल ट्राई टू कम ऑनलाइन ऑन यूट्यूब. तो ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे फिर बढ़िया आपसे भी मुखातिब होंगे. वहाँ पे डायरेक्ट आप भी क्वेश्चन पूछिए. धड़ाधड़ क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके पूछते जाइए, लगाते जाइए, पूछते जाइए, लगाते जाइए. 1-1 घंटे क्लास में इसको किया जा सकता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर. अब वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आगे की क्लास में आपको वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ना पड़ेगा आफ्टर 12. तो वहाँ पर भी इसको बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें भी रहेंगी. बट द फाउंडेशन ऑफ द वेक्टर विल बी द सेम. दैट इज व्हाट इज गिवन हियर. जो भी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, दैट विल बी द फाउंडेशन इन द सीनियर क्लासेस. तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर. लेकिन इक्वल वेक्टर से पहले एक चीज आपको और बता दें. जैसे पोजीशन वेक्टर आपने ड्रा किया. इन द केस ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के केस में क्या है कि वी एक्चुअली नो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल. दैट मीन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल हैज स्टार्टेड टू मूव. कहाँ से चलना शुरू किया है. वी मस्ट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नेचर of movement of the particle. But in another case,
सपोज दैट वी लोकेट द पोजीशन वेक्टर r, तो r में हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ से पार्टिकल चला है. तो सिंपली वी कैन से दैट वेक्टर r with the notation of the vector, it give the complete information from where the particle has started. But suppose that we wish to represent another vector quantity, vector v or vector f, velocity है, force है, and acceleration है. So such kind of the vector does not give the origin. ये origin नहीं देंगे, ये कहाँ से है, ये कहाँ से start हुई है velocity, कहाँ से force लगा. They will just give the point from where they are initiating or from where they are applying. तो ये सारे वेक्टर क्या होते हैं, एक तरह से मान चलिए कहलाते हैं क्या, पोलर वेक्टर. इनको पोलर वेक्टर भी कह सकते हैं. These are called polar vector, or we may say the axial vector. So what is the difference between the position vector and another vector? Another vector just give the point where they are applying, and the position vector give the complete information from where the particle has started to move from one point to another point. इसमें अब आपके पोलर के साथ साथ जो है क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, and in the circular path we have to specify the different terms, the different physical quantity that are vectors. Suppose that angular velocity को अगर आपको शो करना है, या angular acceleration अल्फा को शो करना है, या angular momentum L को शो करना है, these are also vector quantities. और इसमें भी क्या है, there is no origin as like the position vector. यहाँ पर भी क्या है, origin नहीं है कि कोई एक फिक्स पॉइंट है वहां से स्टार्ट होकर के घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, रोटेशनल मोशन हो रहा है. तो such kind of vector is called rotational vector. इनको हम rotational vector भी क्या कहते हैं, कह सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपके रोटेशनल वेक्टर, पोलर वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर. अब थोड़ा सा ये चीज एकदम अलग से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. पोजीशन वेक्टर गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल स्टार्टेड. दैट मीन वी नो एक्चुअली द इनिशियल वे फ्रॉम वेयर द पार्टिकल स्टार्टेड. मतलब उस ओरिजिन को भी पता जानते हो कि कहाँ से पार्टिकल चला है, उसकी औकात क्या है, ये आप कह सकते हो. ठीक है. एंड in another term, in the case of another vector quantity, we don't have the knowledge of the origin of the velocity or the vector. फिर इसके बाद जब चलते हैं रोटेशनल वेक्टर में चलते हैं, तो रोटेशन में और थोड़ा सा घूम जाता है काम कि दे रोटेट कर रहे होते हैं, एंड इनकी डायरेक्शन क्या होती है, लगातार चेंज हो रही होती है. तो दे आर नॉट फिक्स, वो भी क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं. तो दे आर टर्म एज द रोटेशनल वेक्टर. चलिए ये सारे क्लियर हो गए आपको. अब इसके बाद क्या होते हैं कि नेक्स्ट हम चलते हैं इक्वल वेक्टर में. अब इक्वल वेक्टर क्या है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल. दो वेक्टर को हम क्या कहेंगे, बराबर कहेंगे, इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर जस्ट इक्वल टू ईच अदर. सपोज दैट दो वेक्टर हैं, एक को हम वेक्टर ए कहते हैं, दूसरे को वेक्टर बी कहते हैं. नाउ ए एंड बी आर एक्टिंग द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो दे आर सेड टू बी equal vector, and presentation of the equal vector is just given by vector A is equal to vector B. तो ये क्या हो गए आपके इक्वल वेक्टर. now इसी के बाद क्या हम बता सकते हैं, अपोजिट वेक्टर. अब भैया अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जैसा कि नाम है, ये क्या हो गया, इक्वल का अपोजिट हो गया. कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है. तो उस मैग्नीट्यूड में बी इक्वल बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. तो डायरेक्शन के चेंज होने का मतलब क्या है कि वी यूज द साइन नेगेटिव फॉर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर व्हेन इट इज मूविंग जस्ट अपोजिट. हियर माइनस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. जैसे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज के केस में भी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लगाते हैं. तो चार्ज एक तरह का क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया. अभी यहाँ पे प्लस और माइनस लगाने का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है. दैट इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर ऑफ द चार्ज.
सो इट इज इंटायरली डिफरेंट विद द वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड हियर यू विल गेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, दैट मीन यू हैव टू identify what is the direction of the vector. That means if the sign comes negative, it is moving just opposite to the another. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है, दोनों मान चलिए कि इन मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शंस क्या है इनकी अलग अलग है। तो वी कैन राइट वेक्टर a is just moving to opposite वेक्टर b। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपोजिट वेक्टर हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग जीरो वेक्टर में। जीरो वेक्टर है, कोई इनिशियल वेक्टर है, एंड एक और वेक्टर की बात कर लेंगे लगे हाथ, यूनिट वेक्टर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द जीरो वेक्टर, एंड जीरो वेक्टर का यूज क्या होता है। जीरो वेक्टर दैट मीन ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, एंड यहाँ पे इसको भी सम्मान दे देते हैं जीरो को भी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी यूज द स्पेशल काइंड ऑफ नोटेशन जीरो वेक्टर। नो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि सपोज दैट वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर क्वांटिटी, अभी इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि व्हाट विल हैपन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द जीरो वेक्टर। दैट मीन व्हेन वी मल्टीप्लाई द टर्म जीरो विद एनी काइंड ऑफ वेक्टर, जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो महोदय क्या करते हैं, वेक्टर के साथ लपेट करके अपने आप को भी वेक्टर की माला पहना देते हैं, तो दे विल बिकम आल्सो इन अ वेक्टर। तो ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। नाउ बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। नाउ को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियली दे आर विद द सेम ओरिजिन वर्किंग। इन द केस व्हेन द टू पार्टिकल्स started from the same point, the two vectors that are started from the same point, their common point are equal, then they are termed as a co-initial vector। उनको हम क्या बोलेंगे, co-initial vector बोलेंगे। इसके बाद है यूनिट वेक्टर। नो देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर काफी इसमें जो है वेक्टर कैलकुलस में या वेक्टर में बड़ा यूजफुल होता है, एंड यूनिट वेक्टर जनरली डिफाइन एज द वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट मतलब एक होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लगाते हैं, ए कैप लगाते हैं, एंड देयर इज अ रिलेशन विद द वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड विद द यूनिट वेक्टर एज ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का वेक्टर से और उसके मैग्नीट्यूड से ये रिलेशन होता है। अभी इसको फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, और उसके बहुत सारे ऑपरेशंस भी हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। ये सारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए, इतने टाइप के वेक्टर हैं, और इन्हीं सारे वेक्टर्स को लेकर के क्या करेंगे हम लोग, आगे की रणनीति बनाएंगे कि आगे इनके साथ क्या करना है। ये इनको जैसे होता नहीं, युद्ध पे लड़ने जाते हैं तो सारे एक तरह से AK-47 बम बारूद गोला सब लेके जाते हैं, बट द मेन एम टू कंक्लूड द वॉर, युद्ध को जीतना। अभी यहाँ पे वेक्टर एक तरह का युद्ध है, और उसमें वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या हैं, दीज आर द वेपन्स, और इनको लेकर के चलेंगे हम लोग, युद्ध लड़ेंगे, और निश्चित तौर से हम लोग क्या होगा, जीत करके वापस आएंगे। तो ये सारे हमने वेक्टर्स बता दिए। नाउ व्हेन वी गो इन द वेक्टर्स रूल, दैट मीन वेक्टर्स ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है, दैट मीन द क्वांटिटीज दैट आर गोइंग टू ऑपरेट। अब ऑपरेट फिजिकल क्वांटिटीज कैसे ऑपरेट होती हैं, ऑपरेट का मतलब है तो उनको जोड़ा जाता है, तो उनको घटाया जाता है, तो उनको गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, बट द वेक्टर डिवीजन इज अ मीनिंगलेस। अगर दो वेक्टर को डिवाइड किया जाता है तो इट इज अ मीनिंगलेस, और ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे वेक्टर एडिशन,
तो कॉमन एडिशन रूल क्या है, वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है, फिर हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, फिर हम लोग सीखेंगे वेक्टर को कैसे घटाया जाता है, फिर हम लोग सीखेंगे वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड इतना सीखने के बाद आप ये समझ लीजिए कि दैट विल बी द सफिशिएंट इन द क्लास 11। वो 11 में उतनी चीज़ें ही दी गई हैं। एंड समथिंग अदर रिलेटेड, हाउ टू ऐड द नंबर ऑफ वेक्टर्स, जैसे दो वेक्टर प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल रूल से जोड़ सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड्स यूज कर सकते हैं। बट व्हेन देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम पॉलीगन मेथड भी यूज करते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से उसको देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ट्राइंगल लॉ में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड भी लगाते हैं, और पैरेललोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे करके देखेंगे। अभी के लिए आप इतनी चीज़ें फोकस करके पढ़िए, और भी जो चीज़ है, ठीक है, उसको हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, अनदर वीडियो, जो दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू ऑपरेट द वेक्टर्स, दैट मीन वेक्टर को जोड़ेंगे, वेक्टर को घटाएंगे, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, एडिशन रूल, ट्रायंगल एडिशन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो 2-3 वीडियो बनेंगे इसके, वेक्टर के 2-3 वीडियो बनेंगे, और इसी में साइड बाय साइड हम लोग थोड़ा सा मोशन या प्लेन भी पढ़ लेंगे। तो एक अच्छा सा टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। पहला वीडियो वेक्टर्स का है जिसमें वेक्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। सेकंड वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑपरेशनल ऑफ वेक्टर यूज करेंगे, एंड फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2-3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी इसके सॉल्व करेंगे, जो IIT नीट में आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, और हाँ, सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया कीजिए, ताकि सुबह सुबह अच्छा खासा जो है, जो भी चीज़, मूड भी फ्रेश रहता है, कोई कुछ कहता भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा कोई डांटते हैं, मूड अच्छा रहता है, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, समझ में आया सारी चीज़ें, इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।